Welcome back, ladies and gentlemen. The new SP and the DC, who are accused of dereliction of duty on July 31st during the sectarian clashes that happened in Nuh, have been transferred. But is that enough? Because we are seeing some bulldozer action also. Is it becoming a trend? And what more the government is doing on clamping down on the miscreants who indulged in that arson and violence that has brought bad name to not just Haryana but to Delhi NCR as well. Aishwarya. Absolutely, Abhishek. Because just 50 to 60 kilometers away from the national capital, what we all witnessed, what the country witnessed, what the people of Haryana, Nuh and Mewat witnessed, was not only unprecedented, but it was a sense of alarm going off. The state government needs to answer. Let there be no doubt about it. The police officers need to answer. The officers who were responsible, the Home Minister of the state, and ultimately the Chief Minister would have to reply that how can this happen under their particular watch? They have to. But the reality of Nuh also needs to come out. Some people are saying there is a character called Maman Khan, he is responsible. Others are saying there is a Monu Manesar, he is responsible. And I am saying whether it's Maman or Monu, whoever is responsible, the government of the state, the police of the state needs to put these people behind bars. And question number one, wasn't there any intelligence? Question number two, wasn't there any preparedness? Question number three, more than 3,000, 4,000 people were there. What was the local administration doing? Yes, it was the same local administration. It was same Mamta Singh, Abhishek. And I can tell you, because we were live on our sister channel Republic Bharat, our cameras were the only cameras which caught not hundreds but thousands of people being safely evacuated by ADG Law and Order Mamta Singh. But why was there a delay? And how? Just 50 kilometers away, Abhishek, from Delhi, people were hiding on hilltops. Yes. On hilltops with guns. What is happening in Haryana? Let's find out and let's debate. But first, the special report. The Haryana administration appeared to step into action mode over 80 hours after its Nuh district saw a violent communal clash face-off, potentially involving hundreds of people on both sides. These are the places which are being razed down by the administration, and this is the second case today. It was being told that there was some sort of connection or a link which has been established with the razing down of homes in the valley and also at these locations in Nuh to the Nuh violence accused. Even as bulldozers ran over some 200 shanties in Tauru, it wasn't immediately clear whether this action was against the accused or against illegal Rohingya immigrants occupying government land. मैं सरकार के इस फैसले का पूरा 100% समर्थन करता हूं और सरकार की प्रशंसा करता हूं। दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती है, दंगाइयों को कोई धर्म नहीं होता है। दंगाइयों के साथ बुलडोजर के साथ और भी जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। Meanwhile, the top cop in Nuh, SP Varun Singla, has been transferred and a new SP has been appointed. ये देखो भाई फायरिंग होते हुए। Videos accessed by Republic had shown how hundreds of Hindu devotees in a famous Nuh temple were being fired upon from a 100-strong mob hidden in the surrounding hills. With the police also appearing just as strapped as the devotees, the phrase intelligence failure has been bandied around. दोनों सरकारें जो हैं केंद्र में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की हैं, तो ये सवाल लाजमी है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर इस पैमाने पे क्यों हो रहा है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्यों कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं सेट की जा रही है। The police is taking no chances anymore with strictly regulated curfews, clampdowns on mobile internet and flag marches. Right now, the flag march is being now conducted by the security forces. RAF, at least 25 to 30 security companies are deployed in Nuh right now. The curfew relaxation is also announced here.
But with 6 dead, including 2 home guards, and fires from the arson spreading far and wide, is it all too little and too late in Nuh? Let's debate. Well, yes, let's debate. We have with us not only the spokesperson of BJP Haryana, but also close associate of the Chief Minister of Haryana, Jawahar Yadav. We have President of Karni Sena, Suraj Palamu. We have Senior Leader of the Congress Party, Ratnakar Tripathi, and we have Nikhil Jain. जवाहर यादव, मेरा पहला सवाल आपसे है। जवाहर जी नमस्कार। जवाहर जी, गलती मामन की हो चाहे मोनू की हो, सरकार आपकी है, एक्शन आपको लेना है। यह जिम्मेदारी आपकी थी कि यह हो ही ना। 3000 से ज्यादा लोग एक जगह जा रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अब जो डिटेल्स आ रही हैं निकल के, वो अलग है कि नू सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष सामने आके बोल रहे हैं कि हां, हमारे लोग शामिल थे। एक लोकल आई विटनेस कैमरास पे बोल रहे हैं हां, हमने मारा, हमारे पास वेपन्स आए। बट ये सब बाद में डिटेल्स आ रहा है। ऑल दीज डिटेल्स आर कमिंग लेटर। जवाहर जी, देयर इज अ डीजी इंटेलिजेंस, और अपना इंटेलिजेंस का एक सिस्टम होता है, पता लग जाए। लोग पहाड़ों पे बैठे थे दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर, तैयारी करके कि कब मौका मिले एंड वी विल शूट। जवाहर जी। जी हाँ, देखिए, ये निश्चित रूप से हैं कि हरियाणा में हमारी सरकार है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की और हरियाणा के लोगों को सुरक्षा देने की, या हरियाणा में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो हरियाणा को क्रॉस ही क्यों ना कर रहा हो, ये नैतिक जिम्मेवारी, वैधानिक जिम्मेवारी हमारी सरकार की है, उसमें कोई गुरेज नहीं है। यहाँ पर ये धार्मिक यात्रा हर वर्ष होती है, इस बार भी हो रही थी। हमें कुछ इनपुट निश्चित रूप से मिले थे कि कहीं कुछ शरारत हो सकती है। इसके लिए यात्रा से पहले 1000 पुलिसकर्मी अन्य जिलों से लाकर मेवात में भेजे गए थे। पर यहाँ निश्चित रूप से एक चूक हुई कि जिस व्यापक पैमाने पर उनकी तैयारी थी, वो कल्पना शायद हमारी नहीं रही, जिसके कारण ये हुआ। इसको मुझे मानने में, गुरेज करने में कोई दिक्कत नहीं। वहाँ के चाहे वो लोकल एसपी ने कुछ करना था, चाहे डीसी ने करना होगा, या बाकी अन्य लोगों ने करना होगा, एजेंसियों ने करना, कहीं ना कहीं हमारी चूक रही, इसमें कोई गुरेज नहीं है। परंतु ये पहला दंगा ऐसा है देश के इतिहास का जिसको 8 घंटे के अंदर काबू पा लिया, क्योंकि उस दिन जब ये घटनाक्रम चल रहा था तो शायद जिन लोगों को सबसे पहले इस घटनाक्रम का पता चला होगा उनमें से एक मैं भी था। तब लगातार लोकल प्रशासन से, चंडीगढ़ प्रशासन से, जो लोग मंदिर में फंसे हुए थे उनसे, जो लोग पुलिस स्टेशन में शरण ले रखे थे उनसे, जो गौशाला में फंसे थे, वो सब लोगों से फ़ोन पर मेरी बातचीत हो रही थी। ये चूक है, इसको मानते हैं, परंतु 8 घंटे में हमने इसको काबू किया। आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि पहाड़ी के ऊपर से ये हमारा कल्पना नहीं था कि हरियाणा ने अभी कुछ समय पहले लगभग 5000 पुलिसकर्मियों के तहत पूरे देश में जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उसको रोकने के लिए एक अभियान चलाया था, जिसके कारण सैकड़ों लोगों को पकड़ा गया था। और क्राइम का, साइबर क्राइम की बात करेंगे जवाहर जी, एक झटके में अभी साइबर क्राइम की बात करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा एंगल है साइबर क्राइम का, लेकिन प्रिपेयर्डनेस में कमी रही। ये अच्छा है कि आप मान रहे हैं, इट्स गुड। मैं 1 मिनट, बोलिए। हाँ, अब अपनी बात मैं कह लूं। हाँ, उसके बाद जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत डीसीपी मानेसर, जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आता है, एसीपी सोना, पलवल पुलिस और आपकी फरीदाबाद पुलिस, पहले तो तुरंत इसको भेजने का वहाँ प्रयास किया जिससे वो अंदर जा सके, उनको सफलता मिली। उसके बाद साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी केंद्रीय एजेंसी को लेना था वो लगातार उनके प्रयास से वो पहुंची। चूक हुई, परंतु चूक को हमने संभाला। पर हमें दुख है, कुछ जान माल की हानि हुई। माल की तो हानि फिर भी समझते हैं, जो जान की हानि हुई निश्चित रूप से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। पर इस घटना के बाद हमने ये कमिटमेंट की थी कि किसी भी कीमत पर किसी भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। पहली प्राथमिकता ये थी कि ये जो दंगा अच्छी बात है,
क्योंकि ये दंगा नहीं था उस रूप में कि ये एक तरफ से केवल हमला हुआ था। दंगा होता है दो समुदाय जब अच्छी बात है जवाहर जी, केवल एक समुदाय का हमला था। नहीं जवाहर जी, नहीं पुलिस इसीलिए होती है जवाहर जी, रोकने के लिए। ये तो सरकार को करना ही चाहिए। ऐश्वर्या जो बात कह रहे थे वो ये कि ये एंटिसिपेट क्यों नहीं किया गया, ये पहले से सोचा क्यों नहीं किया। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि दंगा होने के 2 दिन बाद तक जिन लोगों ने दंगा किया वो लोग पहाड़ पे चढ़ के बैठ गए, छुप के बैठ गए पुलिस से बचने के लिए, पुलिस वहां गई नहीं। तो 2 लेवल पे थोड़ा सा समस्या है। एक तो ये कि एंटिसिपेट नहीं किया, दूसरा ये कि जो कार्रवाई हुई उसमें शायद थोड़ा दंगा रोक लिया, पर उसके बाद जो क्रैकडाउन होना चाहिए था उसमें थोड़ा डिले हुआ। पर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर रत्नाकर त्रिपाठी ऑल्सो। रत्नाकर त्रिपाठी जी, द फैक्ट इज दैट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। आप मोनू मानेसर का वीडियो देख के बोलते हैं कि यहां से शुरू हुआ, पर एक एहसान मेवाती पाकिस्तानी भी है जो अपने आप को दिखा रहा था कि वो मेवात में बैठ के वीडियो बना रहा है, वो पाकिस्तान में बैठ के वीडियो बना रहा था और वो दंगे से पहले बना रहा था और उकसा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं है और बाहर से तार जुड़े हुए हैं। ये जो साइबर थाने को आग लगाई गई, उसमें से चोरी की गई, वो किसी कारण से की गई। रत्नाकर त्रिपाठी जी, लेट्स बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट अबाउट दिस डिबेट दैट देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। नहीं, जब आप कहते हैं लेट्स बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, दैट मीन्स यू आर डाउटिंग मी। आपका हियरिंग डिवाइस लगता है बंद था, नहीं तो आप जवाहर यादव को पूरा सुने होते। इतना कंफ्यूज गवर्नमेंट का प्रतिनिधि मैंने आज तक नहीं देखा। हमें पहले से पता था कि वहाँ बहुत कुछ होने वाला है, हमारी यात्रा निकलती है हमेशा से। हमने वहाँ 1000 पुलिसकर्मी तैयार किए थे और हमको सब पता था, लेकिन हमें कुछ नहीं पता था। फिर जब हमें पता चला कि क्या हुआ तो हमने पलवल से फरीदाबाद से भेजा, फिर ये किया। हाँ, चूक हुई हमसे, लेकिन चूक हमने 8 घंटे बीच में नहीं आता। पर मैंने कब बोला ये? अरे आप क्या आपने नहीं बोला भैया? जवाहर जी, आपने यही सारी बातें ही बोली है। आपको लग रहा है कि डिमेंशिया के शिकार हो गए हो सर? आप जो बोलते हो आपको नहीं सुनाई देता है। आपने शुरुआत में बोला कि हमने 1000 पुलिसकर्मी भेजे। बीच में मत बोलो यार जवाहर। सुनिए भाई, मैंने आप पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। तो मैं पर्सनल कहाँ हो रहा हूँ? कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया। अगर आप कोई चीज बोले, देखिए ऐश्वर्या जी, नहीं, अगर कोई चीज आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, आपको याद नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे मुंह में मत डालिए। अरे छोड़िए ना जी, आप डिबेट कीजिए प्लीज। Okay, point taken, जवाहर जी। Ratnakar Tripathi, you need to understand. क्योंकि मेरे there is a larger conspiracy to it. Ratnakar Tripathi, you have a problem of getting personal. Please don't get personal, Ratnakar ji. It's a very serious issue. It's a very serious issue. You want to target the BJP, target. You want to hit at the BJP, hit at the BJP. You want to pin them down, pin them down. Yes, they are wrong. Though they are accepting, it's their mistake. They should have done it prior and acted accordingly. You are right. Why is the police there for? Police is to anticipate an act. But there is also a point that there is a conspiracy which was being hatched from across the border, which Abhishek indicated. बोलिए। अब आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। मैंने कौन सी बात गलत बोल दी? बोलिए। जो उन्होंने बोला उसको मैं रिपीट किया, आप मुझे चापे जा रहे हैं। जो उन्होंने बोला वो मैंने रिपीट किया, आप देख लीजिएगा उसको जाकर के। हमको पता था वहां कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा प्लान है। 1000 हमने भेजा, 1000 पुलिसकर्मी। मैंने बोला था कि जवाहर यादव ने बोला। मैंने कब कहा प्लान है? मैंने कब कहा कि फिर जब हमको पता चला हुआ है तो हमने फरीदाबाद से पलवल से कहां से सब कहा कि बहुत बड़ा प्लान है। अरे आपने सबसे आपका जवाहर जी ओपनिंग स्टेटमेंट था। और अगर आप ये मानते हैं, सुनिए आप टॉपिक पे डिबेट सुनिए, अगर आप मानते हैं वहां प्लान नहीं था, इसका मतलब अभिषेक कपूर और ऐश्वर्या कपूर गलत बोल रहे हैं। सुनिए जवाहर जी, मेरी बात सुनिए। अगर आपको लगता है प्लान नहीं था, मतलब ये गलत बोल रहे हैं। आप ओपन करते हैं और फिर भूल जाते हैं यार। अब मैं उत्तर दे दूं? आपके जो मुख्यमंत्री के कर्म है ना, वो लौट रहे हैं सर। आप शांत रहिए जवाहर जी, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा जवाहर जी को जवाब देने दीजिए, फिर हमें सूरज पाल अमू और निखिल जैन के पास भी जाना है। जवाहर जी, क्विकली 30 seconds respond to the charge made by Ratnakar Tripathi, then we have to get to सूरज पाल अमू and निखिल जैन also.
नहीं, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं अभिषेक जी। एक लाइन में उत्तर दे आई ऑब्जेक्ट टू इट। अरे एक लाइन का उत्तर केवल, मैं एक आता लाइन हूं का वापस उत्तर, आपके पास। एक लाइन का उत्तर दे देता हूं। मुझे एंकर ने बोलिए एक लाइन दीजिए। बोलिए एक लाइन, 2 लाइन बोलिए। हमने ये नहीं कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है और 3000 लोगों का कत्लेआम हो जाता है। हमने ये कहा कि दंगा हुआ और हमने 8 घंटे में उसको काबू में कर लिया। हमने मौत को जस्टिफाई नहीं किया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है और 3000 सिखों का कत्लेआम कर दिया जाता है। ये था। बट जवाहर जी, दंगा हुआ, मैंने जो जवाब दिया, riots did take place, बट जवाहर यादव, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि आपने 8 घंटे में काबू कर लिया, बट राइट हुआ। जो पहले पॉइंट पे आपको मानना पड़ेगा कि नहीं होना चाहिए था, ये भी आपको मानना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था। आपने ये मौका कांग्रेस को दिया है कि आज कांग्रेस उंगली उठा के आपको बोल रही है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी पुलिस क्या कर रही है। ये मौका आपने दिया है जवाहर जी, ये भी एक रियलिटी, अंडरस्टैंड दैट। जवाहर जी प्लीज रिलैक्स। सूरज पालमू, प्रेसिडेंट ऑफ द कर्णी सेना। जवाहर जी, आई विल कम बैक टू यू नाउ प्लीज। आपने 1 लाइन मांगी थी, आपने 10 लाइन बोल दी। कर्णी सेना के अध्यक्ष सूरज पालमू, मैं दूंगा। सूरज पाल जी, जब जिस दिन हुआ आप मेरे साथ लाइव थे जी, हजारों लोगों को वहां से हमने देखा ममता सिंह को निकालते हुए, बट वो सब बाद में था। दैट वॉज ऑल क्लीन अप। काम था कि ये होना। बट जो बात अभिषेक कपूर ने, मेरे साथी ने बोली कि भाई इसमें कॉन्स्पिरेसी है, ये जो थाना जलाया है ये किसी कारण से जलाया है। ये साइबर क्राइम का जो एंगल है, कौन क्या ट्वीट कर रहा था, क्या सोशल मीडिया पे वीडियो जा रही थी, वो पूरे सिर्फ मोनू और मामन नहीं है। इसमें 2 दर्जन लोगों से ज्यादा लोग हैं जो गलत वीडियोस डाल रहे थे, भड़का रहे थे लोग। ऐश्वर्या, मैं आज एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपको दिखाने वाला हूं। मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपको दिखाने वाला हूं जिस डॉक्यूमेंट को पूरी दुनिया देखेगी, रिपब्लिक भारत के टीवी चैनल पर। मैं एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, एक FIR। बताइए। FIR को अगर जूम करेंगे आपके कैमरा वाले, जवाहर भाई नोट करें। जूम है, आप देखिए फुल फ्रेम। FIR नंबर 398। हाँ, FIR नंबर 398 डेटेड 2/8/2023। धाराएं लगी हैं 25, 147, 148, 149, 188, 302, 506। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये इनके सहयोगी पार्टी के एक नेता, जो इनका नया गठबंधन बना है आम आदमी पार्टी का, उस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता का नाम इस FIR में दफा 302 हत्या, मर्डर में लिप्त है। जावेद अहमद का आप नाम ले रहे हैं क्या? मौत, प्रदीप शर्मा की हत्या कर दी। जवाहर भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सरकार के मुख्यमंत्री जी को ऐसी हैं, यह आम आदमी पार्टी का नेता है और ये तो FIR हो गई ना सूरज पाल अम्मू जी, ये तो FIR हो गई, पुलिस ही तो कार्रवाई कर रही है। पुलिस का काम आप सरकार को दिखा रहे हैं। अरे सुनो ना सर, सर सुनो जरा। परंतु ये आदमी हमको लगातार और हमारे शहर वालों को आतंकित कर रहा है। जवाहर भाई, इसको अंदर करो। और ये जो गठबंधन में कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, अरे अगर आप लोगों ने पहले दिल्ली में शाहीन बाग में केजरीवाल के आदमियों ने आग लगाई, और यही केजरीवाल के आदमी अब हरियाणा के अंदर आतंकित कर रहा है, मतलब सूरज पाल अम्मू जरा डिटेल में बताएं क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं आतंकित सर, आतंकित कर रहा है मतलब क्या? मैं आपसे कह रहा हूं सर, ये भी आप जूम कर लें, ये भी आप जूम करें भैया। हमको कैसे अपने को आपको हमें आज शहर के अंदर पीस जो हमारी कमेटी बनी उसकी मीटिंग थी, उनको लोगों को ये कह रहा है कि मेरा नाम क्यों आया, मिस कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल। मैं समझ रहा हूं व्हाट इज हैपनिंग इज जवाहर जी, आई नीड टू कम बैक टू यू बिकॉज़ आई हैव लेस टाइम. Nitin, I'm sorry, I'm unable to come to you. But yeah, no, I'll come to you, Nikhil. But you know, the government needs to answer, Abhishek. Jawahar Yadav,
you need to understand that this situation should have never come. Yeah. You see, people who've spent crores, Jawahar Yadav, crores, and bought a house, a penthouse on a high rise in Gurgaon. वो ऊंची इमारतों में करोड़ों खर्च करके जिन्होंने वो घर खरीदे ना, वो इसलिए खरीदे थे because they were given a dream कि गुड़गांव is a world class city. जब उन्होंने अपनी बालकनी से और उनके बच्चों ने देखा, अरे ये सेक्टर 56 में बस क्या हो रहा है, उनके होश उड़ गए. उन्होंने कभी सोचा नहीं था. They never imagined something like this could happen. Jawahar Yadav, it's your responsibility at the end of the day. निखिल मैंने फिर ओके जवाहर, मैं बिल्कुल ले रहा हूं उसको, मैं बिल्कुल उसको ले रहा हूं. हमने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, हुआ. उसके बाद जितना सख्त हमारे प्रशासन ने काम किया, उसके आधार पर हम लगातार काम कर रहे हैं. उस घटना के बाद जितने लोगों पे एफआईआर की है, 100 से ऊपर एफआईआर हो गई, 150 से ऊपर लोग अरेस्ट हो गए. और ये हमारी, देखिए दंगा हुआ, जिस तरह से कंट्रोल किया, उसके बाद ये दंगा, ये आपने ये बात आपने पूरे डिबेट में कही है जवाहर यादव जी. बट निखिल जैन, ये जो मौका है ये बहुत जिम्मेदार होने का है. यू नो, वी आर लुकिंग अहेड नेक्स्ट मंथ टू world leaders coming for G20 summit. We can't afford these pictures going out of the country of riots, arson, violence, and it's the responsibility of all political parties to come together and send a message of unity, Nikhil, that this is not going to be allowed. The fact that Surajpal Amu was saying that someone from the Aam Aadmi party is made an accused, unfortunately AAP is not there. We wanted them to come, but Nikhil, they are your ally. I think there should be a united message sent by the politicians to the people on the ground, and unfortunately Mewat has had a history that this would not be tolerated. Nikhil, last word to you. Absolutely, the politicians of the country need to send a strong message today that this kind of nonsense cannot be tolerated in this country. But sadly, that is what we're seeing again and again. This is the Manipur model repeating in Haryana. That is what we're saying. The BJP spokesperson is telling us that they were able to contain this situation. No, don't compare. What 8 hours? That's where you are wrong. That's where you mislead. That is where you mislead. Don't mislead. Don't mislead. Don't mislead. Don't mislead. Absolutely, the BJP spokesperson is misleading the people of the country. He's telling us that the violence has been contained in 8 hours. Nothing was contained in 4 days. And the person from the Congress had rightly pointed out that at one point he's saying that there is nothing. We had all of the information, and on the other point he's saying that we were not able to do anything. You are playing visuals right now with civilians walking around with AK-47s. This is exactly what is happening in Manipur. There were altercations between the Muslim side and the Hindu side. There were miscreants from both sides. There were miscreants that were using weapons, that were shooting on each other. It was looking like a civil war. That is an insult. You don't know what an AK-47 is, but that's okay, Nikhil. That is okay, Nikhil. But what the problem is, Jawahar Yadav. Right now, Aishwarya, you are Jawahar, okay, 5 seconds to you, Jawahar. 5 seconds, Jawahar. Jawahar, 5 seconds. देखिए जवाहर 5 सेकंड. देखिए, निखिल इज नॉट फ्रॉम बीजेपी. किसी भी तरह के हाँ लीगल या इलीगल, लोग कहेंगे हथियार थे धर्म यात्रा में शामिल लोगों के पास. अगर धर्म यात्रा में शामिल लोगों के पास हथियार थे, उनका कोई उपयोग किया होता तो कोई ना कोई जल्लाद उससे मारा जाता. इस पूरे प्रकरण में कोई जल्लाद मरा क्या जो इस यात्रा पे हमला कर रहा था? इसका मतलब जो धर्म यात्रा में शामिल थे उन्होंने किसी भी प्रकार के वेपन का कोई उपयोग नहीं किया. जवाहर, who is wrong, who is right? That is the point of investigation, Jawahar Yadav. But the issue is that should have never happened. This should have never happened. This should have never happened. This should have never happened. Who is wrong, who is not? Abhishek, that's a point which can be investigated, but this kind of incident should not have happened at all. Absolutely, and the kind of screening of social media accounts that's happening, Aishwarya and Jawaharji, this is a message that should go to the government, should have been done proactively, given the history of Mewat. Absolutely. And now, when this scrutiny is happening, it should happen without bias, without fear or favor, and make sure that culprit, whichever side, should be held to account. And that brings us to an end to this conversation. I believe
सूरजपाल जी, समय नहीं है हमारे पास. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much to all of you. But Jawahar Yadav, this kind of incident should have never happened. Thank you, Vyas. Ornam is going to be back very soon on the debate. That's the time we have tonight. Thank you. Good night. Good night. Thank you so much.